Without taking any further time, I would like to call upon CA Paras Shah to share his expertise and discuss the paper. Sir, the speaker screen is all yours. Yes, thank you so much, Sanika. Okay, guys, now basically I'm here to discuss the mock test paper which was held for November 20 examinations. Okay, so I will first share you the question paper of the mock test. Yes. So is it visible, guys? Can you see the screen that I'm sharing? Okay, great. If possible, if you guys can on your video, it would be great for me. So I would do the interaction a bit better. If it is possible, guys, you can quickly on your videos. Okay, Chira. Priti. Others, if you can just quickly on your videos. Okay. Okay, fine. That's great. So guys, first and foremost, I will be discussing question number 1, which was based on accounting standard. The first one, question number 1A, was a nice and interesting one. When you just read the question up front, so you feel like ये AS10 का question है. Okay, when we just read the question up front and we read the last line, I suppose it has mentioned that calculate the exchange loss and its treatment and depreciation on its item plant property equipment. So once this word plant property equipment comes, many of us thinks that this is a question of AS10, but this is not a question of AS10, guys. When you read the entire question, it is actually AS11 ka question. It is not AS10 ka question. Okay. First and foremost, I would just suggest you two things. Whenever you are starting your examination paper, you have 15 minutes reading time. In that 15 minutes reading time, try to avoid reading question number 1 initially. The reason is that is a question which you have to attempt, a compulsory question. So there is no other option. You have to attempt this question, right? So if possible, don't read this question initially. In your first 15 minutes, read question 2 and question 7 first and decide which question you are going to leave and which question you are going to attempt first from that part. And then lastly come to question number 1 and you can read that. Okay. So what will happen is in your that 3 hours, you won't waste time reading a question which you don't have to attempt. So first 15 minutes, select a question which you are going to leave. That is one extra question which you have an option that you are going to leave. And those who are not good with accounting standards, I would say better not to write question 1 first. Don't put your negative side or don't put your bad side in the beginning. Put your good side initially. The things that you know, जो आपको अच्छे से आता है, write that things first. Okay. So as far as possible, don't start 1, 2, 3, 4, 5, 6. The question which you know the best, start from that. Now, this question is based on basically an asset. अभी asset को वो लोग ने नाम दे दिया plant property equipment. ठीक है? So you have purchased an asset basically for US dollars 50 lakhs. Okay, this purchase is not in terms of rupees, it is in terms of dollars. आपने dollars में purchase की है. ठीक है? So since you have purchased this in dollars,
The rate of exchange will be given to you. Yes, the rate of exchange is $1 is equal to rupees 60. Okay, and this is fully financed from foreign currency loan. पूरा का पूरा fully financed मतलब 50 लाख का सामने लोन है. ठीक है, repayable in 5 equal annual installments. Now when we say 5 equal annual installments मतलब 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs करके repayment करना है, बराबर है. तो इन शॉर्ट हर साल आपको 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर्स पे करते जाना है. ठीक है, इनटू द रेट ऑफ एक्सचेंज दैट इज प्रिवेल. 31st March को the first installment was paid and the rate was $1 is equal to 62 rupees. 2 रुपया बढ़ गया. जब ये लोन लिया था तभी $1 is equal to 60 था. लोन रीपेमेंट के टाइम पे, आई एम सॉरी नॉट रीपेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे द रेट बिकेम $1 is equal to rupees 62. Entire loss on exchange was included in cost of goods sold. ठीक है, the entire loss was basically included in COGS. So now the question arises whether this treatment is correct or not as per AS 11. They have included the loss in cost of goods sold. मतलब पूरा का पूरा loss जो PL में डेबिट कर दिया basically. Om Limited normally provides depreciation on an item of PP, that is plant property equipment, at 20% on WDV basis. The rate of depreciation is 20% on WDV basis. And exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of loan restatement and payment. बोलते वो लोन रीपेमेंट में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ सो डेबिट क्रेडिट पीपीई में करते हैं और रीपेमेंट का जो भी लॉस होता है उसको वो लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करते हैं. सो नाउ यू हैव टू गिव एन ओपिनियन व्हाट इज द प्रोविजन एज पर AS 11 ऑन दिस. डेप्रिशिएबल एसेट पे अगर एक्सचेंज लॉस या प्रॉफिट है, एक्सचेंज डिफरेंट की वजह से फ्लक्चुएशन है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट. एंड जो मेन आंसर पूछा है, कैलकुलेट एक्सचेंज लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट, और डेप्रिसिएशन पूछा है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे. ये साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा और लॉस का क्या करने का. सबसे पहले गाइस जो अपन ने रीपेमेंट किया 10 lakhs, उस पे 2 रुपए का लॉस है तो टोटल 20 lakhs का लॉस है. इज दिस क्लियर? 10 lakhs का लोन आपने रीपेमेंट किया इनटू 2 rupees, तो आई वुड से 20 lakhs का स्ट्रेट अवे इधर नुकसान है, बराबर है. यस, दिस 20 lakhs का नुकसान ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने क्या किया है, एडजस्ट किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. whether this treatment is correct or not, let's talk one by one. Whether this treatment is correct, guys? नहीं. किधर डालना चाहिए इसको? पीपीई में डालना चाहिए. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ही कॉस्ट में इसको बढ़ाना पड़ेगा. जो नुकसान हुआ उसकी वजह से मेरा प्लांट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना यार. सिंपल चीज है, कॉस्ट इंक्रीजेस सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्लांट. सो 20 लाख से मेरे को ये बढ़ाना पड़ेगा. सेकेंडली, अभी मेरा लोन कितने का बाकी है गाइस? व्हाट इज द लोन आउटस्टैंडिंग? कितने का लोन मेरा बाकी है? 40 लाख का लोन बाकी है. उसके ऊपर भी 2 रुपया तो बढ़ा यार. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. आगे जाके नुकसान होने वाला है, अभी से लॉस बुक करो. तो ये जो 40 लाख मेरा पे करने का बाकी है उसके ऊपर 2 रुपए का लॉस, that is 80 lakhs plus 20 lakhs, so the total loss is 100 lakhs. Am I clear? How I am concluding the total loss as 100 lakhs. The total foreign exchange fluctuation loss is 100. The loan which is outstanding 40 lakhs into 2 rupees 80 lakhs, and the repayment that is 10 lakhs into 2 rupees 20 lakhs, 80 lakhs plus 20 lakhs 100 lakhs का total loss है. ये 100 lakhs का loss, फर्स्ट आंसर एक्सचेंज लॉस कितना? 100 lakhs, 80 plus 20, और इसको अपन कॉस्ट में ऐड कर देना पड़ेगा. व्हाट वाज योर कॉस्ट व्हेन यू परचेस्ड इट? व्हाट वाज योर कॉस्ट व्हेन यू परचेस्ड इट? 50 into 60. तो आपका कॉस्ट था 50 into 60. जब ये आप कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना था गाइस? 300, बराबर है. प्लस नाउ योर कॉस्ट हैज टू इंक्रीज बाय 100, right? So now your revised cost is, I would say
400 और 400 पे आपका डिप्रिसिएशन आएगा 400 के 4000 जस्ट चेक 50 lakhs into 50 lakhs dollars into 60 कैलसी पे एक बार मैं ले लेता हूं 4000 आएगा सर 50 lakhs into 60 rupees तो 3000 आ जाता है रुपीज में 3000 lakhs आता है बराबर है 3000 lakhs प्लस 100 lakhs तो 3100 lakhs का 20% आएगा 620 lakhs का depreciation ठीक है I'll just share with you the solution as well yeah this is the working 3000 lakhs आ रहा है प्लस 100 lakhs जो अपना बात हुआ तो टोटल 3100 का 20% comes to 620 lakhs ये दो आंसर्स पूछे थे टोटल लॉस कितना 80 प्लस 20 100 और डेप्रिसिएशन 3000 प्लस 100 ऐड करके 3100 पे 20% आएगा इज दिस क्लियर गाइस समझा सबको ये श्योर पक्का ओके second one is based on your government grant based question AS12 वाला अभी ध्यान से सुनना मैं आपको अभी बता देता हूं प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कभी भी क्वेश्चन में आपको एएस का नाम और नंबर स्पेसिफाई नहीं किया लाइक लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन क्या इधर लिखा है AS11 what is the name of AS11 anyone would tell me AS11 का नाम the effects of changes in foreign exchange rate very good many of you are not clear with this name see 1 mark is deducted if you are not writing the name properly इधर AS का नाम और नंबर लिखो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है ही नहीं कौन से स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन बेस्ड है तो लिखो AS11 का प्रोविजंस ऐसा ऐसा है कि एनी foreign exchange fluctuation on depreciable assets or fixed assets will be adjusted towards the cost of asset only AS का नंबर लिखो नाम लिखो और ये दो लाइन लिख लो तो होगा क्या आपने थियरी डाल दिया and then you write the solution so you will get full 5 on 5 otherwise what will happen your answer is right but your 1.5 mark will be deducted because you have not specified the AS name you have not specified the AS number so wherever in the question AS name and AS number is not there if you write that thing also you fetch minimum 1 mark so ये चीज याद रखना ठीक है छोटे छोटे से आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा this all 1 mark matters a lot in the exam when it comes okay question 2C they are specifying as per AS12 क्या होगा गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ठीक है 100 lakhs का फॉर एक्विजिशन ऑफ अ न्यू मशीनरी जिसका वैल्यू है 500 lakhs ग्रांट को आपने क्या किया क्रेडिट किया है क्रेडिट मतलब एसेट के वैल्यू में से कम कर दिया सो नाउ योर एसेट इज वर्थ 400 lakhs ओनली द लाइफ स्पैन इज 5 years the machinery is depreciated at the rate 20% on WDV method the company has to refund the entire grant on 2nd April 2020 तो 17-18 फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन कर लिया 400 पे 18-19 19-20 आफ्टर 3 years you have to refund तो 3 साल के बाद का पोजीशन देखना पड़ेगा जो भी आपका WDV आता है उसमें जो ग्रांट का अमाउंट आपने पहले लेस किया था उसको ऐड करना पड़ेगा और फिर उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हाउ विल यू डील विद द रिफंड तो सिंपल चीज है अगर आपने कॉस्ट ऑफ एसेट से लेस किया था जब भी ग्रांट मिला था so when you are refunding the grant your cost of asset will increase आपका जो एसेट का कॉस्ट है that will increase by 100 lakhs so आपका cost of asset बढ़ जाएगा and you have to recalculate the depreciation on the revised cost then okay I'll just share with you the solution for this as well see 400 ले लिया स्ट्रेट अवे 500 माइनस 100 1 year 2 year 3 years 3 साल डेप्रिसिएशन किया फिर ये WDV आया ऐड कर दिया 100 दिस इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू अभी डेप्रिसिएशन 304.80 पे आएगा ठीक है am I clear till here guys
Everyone? Okay. So yes, shifting to the third C part of the first question. C part में AS10 based question है. Entity A carried plant and machinery in its books for 2 lakhs which were destroyed in a fire. ठीक है, plant and machinery का value था 2 lakhs. These machines were insured, insurance था तो new for old, मतलब अगर डिस्ट्रॉय होता है मशीनरी तो नया मिलेगा पुराने के सामने. ठीक है, दिस वाज द इंश्योरेंस क्लॉज एंड वर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद न्यू मशीन्स ऑफ फेयर वैल्यू 20 lakhs. ओके, तो जो बुक में वैल्यू 2 लाख था उसका एक्चुअली वैल्यू था 20 lakhs. तो आपको डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा नया मशीन 20 लाख का मिल गया. The old machines which were destroyed, which were acquired by the insurance company, and the company did not receive any compensation. जो पुरानी वाली मशीन थी वो इंश्योरेंस कंपनी लेके गई और आपको रिप्लेस कर दिया, नई मशीन दे दिया. अभी सवाल ये, हाउ विल द एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम. इसका अकाउंटिंग आप अपने बुक्स में करोगे कैसे? सिंपल चीज है. 2 लाख की जो मशीन थी जो इंश्योरेंस कंपनी लेके गई, आपके लिए नुकसान है. आग लगा, उसकी वजह से मेरा WDV में मेरे को 0 वैल्यू मिला, बराबर है. और दूसरा जो इंश्योरेंस से कंपेंसेशन मिला तो इंश्योरेंस कंपेंसेशन का एंट्री डालो कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को पैसा मिला जो मेरा फायदा, और दूसरा एसेट क्रिएट हो गया 20 lakhs का. अंडरस्टूड द टू इफेक्ट्स ऑफ इट. सो यू हैव टू रिकॉर्ड बोथ सेपरेटली. आप नेट इफेक्ट नहीं दे सकते. यू कैन नॉट शो नेट इफेक्ट. 2 लाख का लॉस दिखाना पड़ेगा और 20 lakhs का नया एसेट जो फेयर वैल्यू पे उसका भी आपको अकाउंटिंग डालना पड़ेगा. एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, everyone? Done? Okay. The second question is, there is a supermarket chain which is planning for renovating one of its major stores. The stores will be available, more space available for store promotion outlets after the renovation, and will include a restaurant. उसमें restaurant भी डालने वाला है. मैनेजमेंट अपना बजट प्रिपेयर कर रहा है और बोला है ये कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग जो पूरा अपन चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से 15% अपना सेल्स बढ़ेगा. तो ये जो रिनोवेशन का खर्चा है ये एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या फिर उसको अपन पीएनएल में डाल दे? बोलो क्या कर रहे हैं हम? ऐड होना चाहिए ना, सेल्स इंक्रीज हो रहा है. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है. ठीक है, तो सिंपल चीज है, इट विल बी एडेड टू द एसेट. नॉर्मल चीज है. तो सेम यस, एज पर AS10 it shall be increased to the cost of asset. That will be the theory. आपको थोड़ा वो मेंशन करना पड़ेगा. 2.5 marks का था ये, 2 parts थे. This is also very nice and small and a simple question of AS3. AS3 का एक मस्त क्वेश्चन है गाइस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? आपको एक डेटा देके रखा है और बोला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है. अपन ने AS3 में पढ़ा है, बराबर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो उसके ऊपर एक बेस मस्त छोटा सम बनाया है इन्होंने. कैश बैलेंस विद बैंक, वेदर दिस विल कम इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? यस, कैश बैंक बैलेंस तो उसमें ही आएगा. फिक्स डिपॉजिट आपने नवंबर में बनाया है और मैच्योर हो रहा है 15 जुलाई को, क्या ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? नहीं सर. व्हाट इज द ड्यूरेशन? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी ड्यूरेशन तक इसमें आते हैं? 3 months. 3 months. The rule says 3 महीने के जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रहेंगे वो इसमें आएंगे. ये मोर देन 3 months है ना, तो ये नहीं आएगा. एक नोट लिखना पड़ेगा कि ये नहीं आएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में किए हैं, मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 months, तो ये आएगा यस, 3 महीने से कम. फिर बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया $1,000. जब भी डिपॉजिट किया था तभी 69 था और अभी 31 मार्च को 70 है. तो अपने को 31 मार्च का लेना देना है, तो वील मल्टीप्लाई इट विद 70 एंड देन वील राइट आवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज अभी का प्राइस अपने को देखना है ना. तो अभी के प्राइस के हिसाब से मैं लिखता हूँ. डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर 2019, वंस अगेन 6 months का ड्यूरेशन है, नहीं आएगा. शेयर्स जनवरी में परचेस किए, कुछ बोला नहीं है, तो वंस अगेन नहीं आएगा ये इसमें. तो इन शॉर्ट 3 things will come: कैश बैंक बैलेंस, short term investments, and
bank balance in foreign currency accounts after converting it in Indian rupees. Am I clear to here, guys? Yes. समझा इधर तक सबको? Yes. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें 16 मार्क का आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा था. कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चांसेस आने का अच्छा खासा बढ़ गया है बिकॉज अभी इसमें पार्टनरशिप नहीं है. अर्लियर अटेम्प्ट्स हैड पार्टनरशिप बट फ्रॉम May 20 a circular came that partnership won't be there for group 1 that has been shifted to group 2. तो अभी सिंस पार्टनरशिप ग्रुप 2 में बहुत कम बड़े चैप्टर्स है और ये एक मेजर और इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा आपके ग्रुप 1 का. सो एज फार एज पॉसिबल आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू लीव दिस चैप्टर. Most important chapter. Okay, it will take good amount of time also. Do not attempt initially at the beginning, otherwise if it takes 1 hour, then you will go mad attempting your balance paper in just 2 hours duration. Okay, you will go frustrated. That is why advisable ये starting में नहीं लिखना है, better है वो starting में ना लिखो. Normal समय final accounts का I would say not much things are involved here. डेप्रिसिएशन वगैरह है, इनकम टैक्स का प्रोविजन वगैरह है. सो इट्स अ नॉर्मल सम. यू जस्ट हैव टू बी स्पेसिफिक व्हिच आइटम विल कम वेयर. इफ एटलीस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग 2-3 सम्स, आई वुड से दीज आर योर सम्स व्हिच यू विल डू विल फेच यू गुड मार्क्स. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते इसके सम्स, इतने टफ वाले एडजस्टमेंट्स नहीं होते जो बचपन में होते थे. सिर्फ प्रेजेंटेशन मैटर करता है, कौन सा आइटम किधर जाएगा ये आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है. It's a good and a scoring chapter. Don't leave it in option. If in case you have left it, I would say do it. Must do chapter for this attempt. Coming to 2B, Meda Limited took a loan from bank to be settled within 5 years in 10 equal half yearly installments. First installment due है 1 लाख का 30th September को. Determine how the loan will be classified in presentation of financial statements of Meda for the year ended 31st March 2020. जो 6 महीने के लिए आप रीपेमेंट करने वाले उसको अपन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे. बराबर है. जो आपका करंट लाइबिलिटीज है और बचा हुआ जो लोन जो आपका बाकी है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना पड़ेगा जो आपका नॉन करंट है. तो बेसिकली ये शेड्यूल 3 का रिपोर्टिंग वाला पार्ट है जो एक 4 मार्क का उन्होंने छोटा सा क्वेश्चन पूछा है. आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर योर रेफरेंस. This is what it states. Installment due from 30th September to 31st March will be shown under the head other current liabilities. Therefore, in the balance sheet 31/3/2020 8 लाख रुपीस, दैट इज वो 1 लाख का अभी भी 8 इंस्टॉलमेंट्स जो पड़ा है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा देंगे. ठीक है. विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज एज current maturities of loan from bank. Okay, so whatever is the period of 6 months outstanding, you can say that is short term, but उसके ऊपर जो भी है आपको long term borrowings में डालना पड़ेगा. तो ये शेड्यूल 3 का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है. Okay, 3A is a question which is based on your investments. The best part is this is a question wherein 2 years investments has to be prepared, guys. 2 साल का इन्वेस्टमेंट बनाना है. देखो आपको डेटा चालू हो रहा है जनवरी से. आप सोचते रहोगे ईयर है जनवरी टू दिसंबर, नहीं, ईयर है अप्रैल टू मार्च. तो सर वो क्या करने का बेटा, वो जो जनवरी और मार्च ये 2 महीने का ट्रांजैक्शन है उसके लिए अलग से नहीं बनाने का. एक ही इन्वेस्टमेंट बनाओ, बीच में लाइन डाल दो. वो ऊपर वाला साल, वो नीचे वाला साल, इसका क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा. ठीक है. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, और आई वुड से ये आपको ध्यान रखना है. तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन वेयर 2 years डेटा इज गिवन टू यू. 2 साल का डेटा दिया है. ठीक है. जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसमें से भी कुछ प्री है कुछ पोस्ट है, तो प्री पोस्ट का कैलकुलेशन करना है. राइट इश्यू भी है. जो आपने रिनाउंस किया है 60%, तो रिनाउंसमेंट ऑफ राइट एंड ऑल दैट थिंग इज देयर. आई वुड से जनरली इन्वेस्टमेंट इज समथिंग which is normal and easy, so I am not discussing this much in detail. देखो इधर
2 साल का आपको डेटा बना है तो एक ही बनाया, बीच में एक लाइन ऐसा मार दिया कि भाई दिस इज फॉर 1819 एंड दिस इज फॉर 1920, so that you are clearly bifurcating and distinguishing these two things. Fine, clear with this? Yes. Yes, sir. Next is your loss by fire में loss of stock वाला क्वेश्चन है ये। डिपार्टमेंट अपना सॉरी, आपको ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने को जो बोलते हैं और उधर से आपका ये आता है। सो बेसिकली योर ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन wherein you will find the value of stock. स्टॉक के वैल्यू से आपको लॉस बाय फायर मिलेगा, लॉस बाय फायर से आपको कितना क्लेम करना है वो मिलेगा। सो ये मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन ही है। आई डाउट दे हैव चेंज्ड द फिगर्स एज वेल, मोस्टली फिगर्स आर आल्सो सेम, शायद से पीक्यू वाला क्वेश्चन है ये। सो एक मस्त 10 मार्क का क्वेश्चन। आईसीआई अपने एग्जाम में भी काफी टाइम मॉड्यूल का डिट्टो क्वेश्चन पूछता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू ऑल द सम्स ऑफ मॉड्यूल नाइसली। ठीक है, सो दिस इज प्योर मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन। आई सपोज आई सेड यू फिगर्स भी शायद से सेम रखे हैं, दे हैव नॉट चेंज्ड, which is a best advantage and benefit for you. Okay, coming through 4A guys, डिपार्टमेंटल बेस सम है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, सेल्स दिया है, जनरल एक्सपेंसेस दिया है। जनरल एक्सपेंसेस अगर अपने को पता नहीं है ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, नीचे अगर कुछ बोला नहीं है, सो वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल और उधर अपन जनरल एक्सपेंसेस डाल देंगे, ए और बी में अलग अलग से नहीं अगर अपने को बांटना है। अभी बोला है ट्रांसफर्स है, नहीं ये क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए में 6 lakhs है, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 120, और डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 180 दूसरे डिपार्टमेंट के। तो वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। ये करके अपन ने जीपी वगैरह सब बना लिया। अभी बाद में अपने को कंसोलिडेटेड पीएनएल बना के इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स एलिमिनेट करना है। We have to eliminate interdepartmental profits. Opening stock of department A includes 60,000 and so taken from department B respectively at cost. So opening stock is already at cost, and it says that the rate of gross profit is uniform throughout the year. तो जीपी रेशियो आ जाएगा, जैसे ही आप सब डेटा डाल दोगे वो जीपी रेशियो को आपको अप्लाई करना है जो आपने इंटर ट्रांसफर्स किए हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपको निकाल देना, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ नाइस एंड अ स्कोरिंग क्वेश्चन इफ यू आर वेरी मच अवेयर एंड अलर्ट अबाउट योर कैलकुलेशंस ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। Yes, it was given कि भाई 24,000 है आउट ऑफ 60 lakhs। द क्वेश्चन सेड यू कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में किसका कितना है। सो पहले जीपी रेशियो निकाल दिया, इसका 40% आ रहा है, इसका 50% आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व आया, क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व आया, ठीक है, दोनों में स्टॉक रिजर्व का पोर्शन आया। whenever you are finding GP ratio, always say gross profit for departmental accounts are gross profit is equal to sales plus departmental transfers into 100. Gross profit upon sales plus departmental transfers into 100. There are no interdepartmental transfers here, so no point in that. If there are interdepartmental transfers at some profit margin, so even that has to be taken while calculating GP ratio. इसमें वो नहीं है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक में सीधा आपको डेटा दिए, ऐसा नहीं बोला ए ने बी को इतना दिया, बी ने ए को इतना दिया, वैसा कुछ डिटेल्स अंदर का फिलहाल दिया हुआ नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है कि इसमें इतना इसका, इसमें इतना इसका, ठीक है। क्लियर क्लियर गाइस। देखो जनरल एक्सपेंसेस को कॉमन में डाल दिया, अगर बांटना पॉसिबल नहीं है तो इसको कॉमन में डाल दिया। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक पे भी अपन ने कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक पे भी कैलकुलेट किया, बिकॉज वो लोग ने बोला द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म। पिछले साल भी वही, ये साल भी वही, नहीं तो काफी टाइम वो लोग पिछले साल का अलग जीपी क्वेश्चन में देते, इसमें दिया हुआ नहीं है। रीजन इज दे हैव स्टेट दैट स्टेटमेंट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल में यूनिफॉर्म। बोलो एनी डाउट स्टिल हियर गाइस, देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। और ये तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछ लो, शर्माना मत।
Yes, is it going good? Are you understanding what I am telling you? Yes, sir. Okay. Any doubts before 4A? 4A के पहले कुछ doubts है? Sorry, 4A तक कुछ doubts है? तो then I'll start 4B and 5 and 6. Then the remaining 2.5 questions will be left. Until you're clear? Everyone? Okay. Starting with 4B. Now 4B question is actually based on your single entry system. आपका ये single entry system based question है. ठीक है? You have been asked to prepare trading profit and loss balance sheet. एक चीज याद रखना, 99% of question single entry के सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप उसके आते हैं. तो आपको नॉर्मल टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है. अगर कंपनी का आता है तो फिर शेड्यूल 3 बनाना पड़ता है. So generally they have the tendency of, that is why asking you questions based on individual or partnership firm. So you don't basically waste time in preparing schedule 3 notes and all that stuff. You are very much used to the T format. तो आपका T format में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. ठीक है. So that is why here you have to remember that T format solutions are fine enough since this is an individual. तो individual के लिए T format चलता है. 2019 beginning बराबर है. तो दैट इज नथिंग बट मार्च 19 एंड मार्च 20. ये 2 साल का आपको डेटा देके रखा है. ठीक है. पासबुक का कुछ डेटा देके रखा है और बोला है क्रेडिटर्स को इतना पे किया, सैलरीज को इतना पे किया, पर्सनल खर्चा इतना है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइनल अकाउंट्स बट वंस अगेन सेम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको यूज करके और प्रॉफिट डाल के आप क्लोजिंग बैलेंस लेके आ सकते हो. सो आई वुड से इट्स अ स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन है. नॉर्मली हर एक में ऐसा 2-3 एडजस्टमेंट्स रहते हैं जो ऊपर से जाते हैं या टफ लगते हैं, बट दिस पर्टिकुलर सम डजंट हैव मच कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व. ठीक है. इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं है. बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट का जीपीआर है बिकॉज आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. दैट इज व्हाई द बैलेंसिंग फिगर इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आई एम सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक, and then putting that stock in the balance sheet and everything of 2020. We tally our balance sheet and working notes के लिए वो sales कितना, purchase कितना, वो दोनों चीज के लिए मेरे को sundry debtors creditors account बनाना पड़ेगा. और cash sales के लिए भी मैं cash bank account बना लूं तो better for getting my cash sales as well. ठीक है. So working notes are very much important. Presentation matter नहीं करते guys, but single entry वाले question में आप अगर डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाते हो, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हो, बेयर मिनिमम 2 मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर 2 मार्क्स, इट इज बेटर दैट वी प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स नाइसली. समझा मेरा पॉइंट? So do prepare your working notes as far as single entry questions are concerned. दो अगर आपका अंदर कुछ गलती हो गया, but if your working note is fine, clear and right, you will fetch good marks. So single entry based sum में working note ऐसा सीधा पेन से लाइन खींच के टी बना दो, बेस्ट है. कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है. लाइन ड्रॉ करना, पर्टिकुलर्स लिखना, रुपीज लिखना, डोंट वेस्ट मच टाइम इन दैट. जस्ट पेन से एक टी खींच लो, रुपीज लिख लो, यू कैन स्टार्ट, और वी कैन डू इट विद पेंसिल एज वेल. My point is, don't do much presentation in working notes. You have to see to it that you are just presenting it in the examination. तो सामने वाले को दिखे कि चलो ओके इसने वर्किंग नोट बनाया, इसका मार्क्स भी मेरे को इसको देना पड़ेगा. सर. हाँ सर आप बोल रहे हो कि वर्किंग नोट में मतलब वो टी फॉर्मेट नहीं बनाया क्या, वो पर्टिकुलर्स एंड और वो सब, बट अगर जो नॉर्मल सम्स है उसमें भी अगर लाइन वाइन नहीं बनाया, सिर्फ ऐसे ही हम लोग ने लिख दिया पेन से ना पर्टिकुलर. सिर्फ बीच वाला लाइन मार देना. अच्छा. सिर्फ बीच वाला लाइन मार देना. इट विल हार्डली टेक अ सेकंड पार्ट. द रीजन इज द पर्सन हु इज रीडिंग बेसिकली इट लुक्स बेटर. कुछ जन के हैंडराइटिंग ऐसे होता है ना, समझ में नहीं आता डेबिट कौन सा है क्रेडिट कौन सा है, खिचड़ी हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट खिचड़ी, आई वुड से मेन आंसर में इतना भी वो मत करो कि आप बीच वाला लाइन ड्रॉ ना करो. बीच वाला लाइन ड्रॉ कर लो, रुपीज फटाफट ऐसा ही छोड़ दो, या उधर थोड़ा जगह छोड़ दो तो भी चलेगा, आप लाइन ना मारो तो. But at least of the debit credit, let that be clearly identified. एंड सर मतलब कि वो अभी ये पार्टनर्स कैपिटल का मतलब कि सम आया पार्टनर्स कैपिटल का, सर समझो वैसा, तो उसमें कि कैसा है ना कि वो जो मार्जिन के बाद का जो लाइन रहता है ना, तो वो यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि वो थोड़ा बड़ा बन जाए, क्योंकि अगर 3 पार्टनर आते हैं
तो फिर हमें बहुत कम जगह बनता है। सेम इन्वेस्टमेंट में भी अगर 3 कॉलम बनाना है तो पर्टिकुलर्स के लिए कम बनता है, उसमें डेट का भी आता है। यस यू कैन, चलेगा, तकलीफ नहीं। बिकॉज प्रैक्टिकली यस आई कैन अंडरस्टैंड कि जब भी वो ज्यादा कॉलम्स रहता है तो एक पेज में वो करना कम हो जाता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, दे विल नॉट डिडक्ट मार्क्स फॉर ऑल दिस थिंग्स, ओके, सो बी रेस्ट क्वेश्चन एश्योर्ड। था सर, वो पर्टिकुलर जो होता है लिखने का हर एक क्वेश्चंस में, मतलब तो नहीं जरूरी नहीं है, नहीं है। रुपीज में लिखेगा ना तो भी चलेगा, बिकॉज इफ यू लुक एट देयर सजेस्टेड मतलब ये वाले सॉल्यूशंस एज वेल, तो पर्टिकुलर्स ना लिखो चलेगा, बट रुपीज एसेंशियल है लिखना, ठीक है, हैव दैट हैबिट इन यू, बिकॉज सम ऑफ देम आर लाइक दे उतना डेकोरेशन करते हैं, अरे बाप रे ये अकाउंट्स का पेपर है क्या ड्राइंग वाइंग का पेपर है, मतलब इतना एकदम फर्स्ट 2 क्वेश्चन देता हूँ ऐसा एकदम कटिंग नहीं, कैंसलेशन नहीं, 1-1.5 घंटा आराम से लूंगा, अरे बेटा 3 घंटे का पेपर है, 4-5 घंटे का पेपर नहीं है, लिख थोड़ा फास्ट। So you know you have the tendency के first 2 questions में एकदम बहुत अच्छा करेंगे, फिर पीछे लगता है यार टाइम ही नहीं है अभी भगाओ। So my point is right from the first question have that time management so that you do not leave your paper, because accounts सबसे scoring है। तकलीफ क्या है ना, people are not able to attempt more than 90 marks, some of you 80-90 से ज्यादा attempt नहीं होता है, तो यार यही आपका सबसे बड़ा एक तकलीफ है ना, इसलिए आपको exemption नहीं आ रहा। You attempt 90-95, the chances of you getting an exemption increases to a great level, ठीक है। So as far as possible जितना ज्यादा लिखोगे उतना सामने वाले एग्जामिनर के पास भी अपॉर्चुनिटी है ना आपको मार्क्स देने का, आप लिखोगे ही कम तो मार्क्स फिर कैसे दे सकते हैं, right? So write as much paper as possible, as much paper as possible, and generally this is the first paper, so our hand is not used to, अपना फर्स्ट पेपर के बाद थोड़ा हाथ यूज टू हो जाता है, ठीक है, 3-3 घंटा लिखने के लिए, सो दिस इज योर फर्स्ट पेपर, प्रैक्टिकली आवर हैंड इज नॉट यूज्ड टू दैट मच राइटिंग ऑल दैट थिंग्स, सो हो सके उतना ये पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम पेपर छूटना चाहिए, कम से कम, बेयर मिनिमम, द थिंग्स दैट यू डोंट नो और यू फील इफ आई वुड हैव रिटन हार्डली 1 or 2 मार्क्स वुड हैव इंक्रीज्ड, उतना पेपर छूटे चले, उससे ज्यादा नहीं छूटना चाहिए। See to it that you are getting maximum marks from this particular paper. Okay, guys. Yeah, 5A was once again your PPI wala question. SI similar question. I suppose only figures have been changed. Module का ही question है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फिगर्स थोड़ा ऊपर नीचे किया है या वो भी सेम रहेगा, so it was also one of the most scoring part. नेक्स्ट इज ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पूछा है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पुणे ब्रांच एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय इट कंसीडरिंग द रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो पुणे ब्रांच है वो गोवा ब्रांच को कुछ शायद से दे रहा है, इनवॉइस प्राइस पे दे रहा है, सेम गोवा ब्रांच वापस पुणे ब्रांच को दे रहा है, इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक है, so all these things loading unloading and all that things has to be taken care here, कोई मेन चीज है इसमें, मिस्टेक नहीं करना है, कोई भी मतलब चीज छोड़ना नहीं है, वो लाइन वाइज, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपको बनाना है और स्टॉक रिजर्व का सी कैलकुलेशन इधर ही कर लिया है वो लोग ने, फाइनल नेट प्रॉफिट ढूंढ है, ठीक है। Put your basic concepts clear in your head, the things will go good. Some sums are literally very good and scoring, such are sums which are one of them, so score maximum that you can, ठीक है, keep your cool, maximum जितना हो सके उतने ऐसे sums में score कर लेने का, let even your 1 mark not be lost from this such type of questions. सी पार्ट में once again आपको सिर्फ वो रेट मारना है, ओपनिंग स्टॉक में कौन सा रेट लगेगा गाइस, ओपनिंग, एवरेज, क्लोजिंग, ये 3 रेट्स रहते हैं, ओपनिंग स्टॉक में कौन सा रेट, ओपनिंग रेट, परचेसेस एंड सेल्स, एवरेज, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स गाइस, क्लोजिंग, वेरी गुड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल पेएबल, डेबिट क्रेडिट मतलब बिल्स रिसीवेबल पेएबल, कौन सा, क्लोजिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एवरेज, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग एंड दिल्ली ऑफिस वो तो दिया ही अकाउंट, रहेगा, ये देखो एक्चुअल अमाउंट दिया रहेगा, एक्चुअल अमाउंट वो लेने का, समझा, गुड सेंट टू
हेड ऑफिस अपना ये सॉरी गुड सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एंड जो उनका क्लोजिंग बैलेंस है अगर उसमें कुछ इन ट्रांजिट आइटम नहीं है तो वो एक्चुअल करके लिखते हैं अपन, एक्चुअल करके. So this is that actual amount which will always be given to you in the question. You have to just vouch or search for that things. Shall I start with question 6 guys? Yes. Question 6 से चालू करता हूं मैं. सर क्वेश्चन 6 में पहला वाला जर्नल एंट्री सिंपल था एकदम मस्त, प्रेफरेंस शेयर्स वाला लॉटरी. दूसरा भी वो इफेक्टिव कैपिटल वाला था. इफेक्टिव कैपिटल में अपन क्या क्या लेंगे, एसेट्स माइनस अपना वो करते हैं अपन इफेक्टिव कैपिटल के लिए. सो व्हाट ऑल थिंग्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड ऑल दैट स्टफ. सम बेस्ड ऑन दैट. लेस इन्वेस्टमेंट्स वो इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स करते हैं तो वो लेस करने का था. सी पार्ट इज अ नाइस क्वेश्चन. सिंगल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है. बोला है आपके उधर रेट वेट पड़ी ये वो आपने डिक्लेयर किए इनकम टैक्स ऑफिसर को 9,12,000. वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन कि भाई आपने कुछ हाइड किया है वो सही है कि नहीं. ठीक है, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, 2 साल का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा. देखो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ठीक है, जो डिफरेंस है वो कैपिटल कैपिटल रहेगा. तो अभी कैपिटल का मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस रहेगा उसमें सारे एडजस्टमेंट्स करता हूँ. ड्रॉइंग्स, फिर ये जो LIC पॉलिसी उसका मैच्योर हुआ उसने बिजनेस में डाला, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट. इफ प्रॉफिट इज मोर देन 9,12,000 मतलब आपने ITO से अपना प्रॉफिट छुपा है, यू हैव सप्रेस्ड योर इनकम. So yes, the final result is something like this, that you have not shown your income correctly. You suppressed your income. देखो assets minus liability, you get capital capital. Opening capital अपना closing capital से ठीक है खेला है. मैं बोलता हूँ opening capital जो भी आपका था ठीक है उसमें प्लस कर देता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और उसमें से लेस कर देता हूं ड्रॉइंग्स. जो वैल्यू आता है बेसिकली इट विल कम टू 1342. आपने कितना इनकम डिक्लेयर किया है, 9,12,000. सो यस देयर इज अ केस ऑफ सप्रेशन ऑफ इनकम. ठीक है, इनकम सप्रेशन हुआ है. तो मैं चेक कर रहा हूं प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट दिखा है कितना. अगर कम दिखा है तो सप्रेशन. वही आपको ढूंढना था कि भाई इनकम सप्रेस कितना हुआ है. And then we have this हायर परचेज वाला क्वेश्चन जिसमें वो टेबल बनाया, टेबल बनाना है. ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वुड से दिया हुआ नहीं है तो दैट इज वन मिसिंग फिगर. उससे आपको पूरा टेबल बना के सिर्फ कैश प्राइस ढूंढना है. तो प्रिपेयर द टेबल एंड कैलकुलेट द कैश प्राइस. And lastly, I suppose we have a question which is based on customer made a machine before delivery. ABC Limited had to change the method of its production. The new method does not require machine order and so it will be scrapped after delivery. Expected scrap is nil. Show the treatment of machine in its books of accounts. In normal के भाई अपन ऐसा अगर करते हैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा. सो इट सेज दैट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड जब भी कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी अराइज होता है should recognize a liability of 4 lakhs payable is beyond the current accounting period. The expenditure is recognized as an expense rather than asset. Future economic benefits is improbable. तो जो भी परचेस किया है उसको पूरा का पूरा मैं एक्सपेंस ले लेता हूं. Should charge the amount of 4 lakhs being lost due to change in the production method as an expense और उसको P&L में आप डाल दो और corresponding liability में डाल दो. Am I clear till here, guys? Yes, sir. Sure, everyone? Yes, sir. Pakka? Yes. Any doubts still here? If you want, I can explain any of the question which we have seen again. कुछ भी doubts है तो पूछ लो. I give you 2 minutes time. किसी को कुछ भी doubt है तो पहले अपन Q&A कर लेते हैं doubts का. इसमें किसी को कुछ भी doubt रहेगा तो. सर आपने जो ब्रांच डेटास वाला जो सम था ब्रांच अकाउंटिंग में, हाँ,
उसमें जो ट्रांजिट वाला जो एडजस्टमेंट होता है ना, जो हेड ऑफिस टू ब्रांच में होता है, जो ट्रांजिट का हाँ, इफेक्ट, सर वो इफेक्ट एक बार समझना था, मतलब कुछ। फॉर एग्जाम्पल कैसा है ना, गुड्स इन ट्रांजिट जनरली होते हैं, तो उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करता हूँ। गुड्स इन ट्रांजिट जनरली होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देता हूँ कि भाई ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स आया ही नहीं है, बराबर। तो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स ऐड कर ले चिराग, और उसका जो स्टॉक रिजर्व है वो डेबिट में डाल दे, जो स्टॉक रिजर्व अपन रिवर्स करते हैं, बराबर है। सिमिलरली वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है कि गुड्स ब्रांच को नहीं मिले, गुड्स सेंट बाय एचओ नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, ये तो उसमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ में बढ़ाना है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में अपन ने बात किया, तो दोनों जगह बढ़ाना है। और ब्रांच ने अगर कुछ कैश भेजा और वो हेड ऑफिस को नहीं मिला, तो हेड ऑफिस अपने कैश में उसका ट्रांजैक्शन करेगा। सो देयर आर ओनली टू इन ट्रांजिट आइटम्स, गुड्स इन ट्रांजिट इज द वन आइटम एंड दूसरा कैश इन ट्रांजिट। तो अगर तू सिर्फ डेटर्स मेथड का बात कर रहा है, तो गुड्स फ्रॉम एचओ, बराबर है, एचओ अपने बुक्स में बनाती है गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में वो इन ट्रांजिट ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। यस सर। क्लियर? हाँ। और बोलो गाइस, anyone else having any doubts? You're free to ask, do not hesitate. नहीं, that's it, that's it. सर और एक क्वेश्चन था कि हाँ, अगर बोल। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2, तो हम स्टार्ट करते हैं तो कैसा, मतलब कि उसको पहले नोट्स टू अकाउंट से चालू करना है, या फिर मतलब नोट्स कुछ टू मतलब टिप्स? अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट एवरीथिंग फर्स्ट इन द नोट्स टू अकाउंट्स, उसका टोटल मार के ही तू बाहर डाल पाएगा ना। If there is just one item, you can directly put there, like P&L में कुछ एक ही item है, या balance sheet में there is only one item, so you can avoid preparing notes to accounts for that. But share capital है, reserves and surplus है, assets है, उसका notes to accounts तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसमें ना एक depreciation का वो लोग ने मस्त shortcut बनाया। नॉर्मली क्या अपन depreciation सब उधर less depreciation करके उधर अंदर लिखते हैं। So just show their presentation, द सजेस्टेड आंसर, मतलब आपको भी आइडिया है कि यार अपन ऐसा प्रेजेंट करें ना, तो अपना टाइम भी बचेगा थोड़ा, और स्पेस भी अपना कम जाएगा। जो जनरली अपने को लगता है कि यार 2-3 पेज में जा रहे सॉल्यूशन, टैली करने के लिए तकलीफ होती है। सी दिस इज द वर्किंग। पीपी, बहुत जन को अभी भी आदत है फिक्स्ड एसेट लिखने का। रिमेंबर माय वर्ड्स, डोंट राइट फिक्स्ड एसेट्स, इट्स नाउ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट यूज दिस वर्ड। दे हैव मेड अ टेबल, ये अमाउंट है, ये रेट है डेप्रिसिएशन का, इतना डेप्रिसिएशन, इतना डब्ल्यूडीवी, ठीक है। आप अपने को और कम कर सकते हो, आप रेट नहीं लिखो, अमाउंट, डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी, आप ये 3 कॉलम बनाओ। सो माय पॉइंट इज प्रिपेयर सच टेबल्स so that you are avoiding to write those things there itself. समझा? तो सब पहले नोट्स टू अकाउंट्स भर लो, और उधर से ही आप फेस ऑफ पीएनएल और फेस ऑफ बैलेंस शीट बना सकते हो। एंड आई वुड से कि डू नॉट अटेम्प्ट द सेकेंड और थर्ड सम, कम से कम 5 या 6 सम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर एग्जाम में जाके आपका फाइनल अकाउंट्स का सम आए तो आपका स्पीड बढ़ेगा। बचपन में आपने कितने सारे फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व किए थे, सो यू बिकेम प्रो। नाउ देयर इज अ लेवल वेयर यू फियर फाइनल अकाउंट्स कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। डोंट फियर, इट इज नॉर्मल ओनली, यू डोंट हैव दैट प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई यू आर फियरिंग कि यार ये पेपर कंप्लीट ही नहीं होता अगर मैं ये करता हूं तो। सो द मोर यू हैव दैट राइटिंग प्रैक्टिस, आपका हाथ बैठ जाएगा। जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ बैठ जाएगा, ठीक है सर? मतलब हाँ। कि नोट टू अकाउंट से चालू करें तो पहले मतलब कि अभी वो हम लोग को समझेगा कैसे कि मतलब फाइनल अकाउंट्स के लिए कितना, मतलब कि बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए कितना जगह छोड़ना, क्योंकि हम लोग एक जगह छोड़े एंड एक जगह नॉर्मली में नहीं कैसा आया रहता तो। है ना, जो भी तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है दैट विल गेट कंप्लीटेड इन वन सिंगल पेज फाइल। बैलेंस शीट में टेक 2 साइड्स मैक्स टू मैक्स, हाँ, you leave 3 sides initially ना, straight away. If there are any notes तो you can write that below, और पीछे तू 3 साइड छोड़ के notes to accounts करके चालू कर दे। अच्छा, तो वो जगह बच जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि तू 4-5 सम प्रैक्टिस करेगा ना, तो तेरे को आइडिया आ जाएगा कि यार कितना भी बड़ा सम हो, बैलेंस शीट 2 साइड में आराम से हो ही जाता है, पीएनएल 1 साइड में आराम से हो ही जाता है। सो 3 साइड्स आर इनफ फॉर एनी सम, द बिगेस्ट सम एज वेल will be completed 3 sides, the main answer.
नहीं, मैं पहले मतलब लिख देता हूँ बैलेंस शीट में सब आइटम्स, फिर मैं उस हिसाब से फिर बाद में नोट्स टू अकाउंट चालू यस कर। यस यस, इवन दैट इज फाइन ना, कंप्लीटली फाइन ऑन दैट, नो इश्यूज व्हाटसोएवर, वो भी चलेगा। मतलब तेरे को अगर लग रहा है कि भाई मेरा ऐसा फास्ट हो रहा है तो यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। नो इश्यूज नो इश्यूज। अभी बहुत जन को इश्यूज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से। सी आई वुड से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अभी आपके ग्रुप 1 में है वो काफी कम हो गए। नाउ यू हैव स्टैंडर्ड्स लाइक AS1, just hardly 5 questions, I would say even less than that, 2 to 3 questions. The most least questions are there in AS1. तो AS1 फिलहाल मैं साइड पे निकाल देता हूँ। Which all other standards are there for you? AS2, AS3, AS10, AS11, AS12, AS16, right? Overall 7, but I would say main 6 AS are there. तो गाइज अगर ये 6 AS के अगर मैं क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल में देखूं, इट डजंट इवन टच टू 50, मुश्किल से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मुश्किल से, ठीक है, इवन लेस देन दैट, आई नो दैट कि सर 10-10 क्वेश्चंस नहीं है ऑलमोस्ट हर एक के। So if you say कि which AS can come in exam, probably, okay, the question is, sir, which AS can come in exam probably? See, there is a AS10, AS10 का क्वेश्चन जनरली आता ही है, ठीक है। मैं उल्टा जाता हूं, फिर आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन जिसने पूछा कि कौन सा AS जनरली आता ही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, मैंने बोला AS1 फिलहाल मैं निकाल रहा हूं, मेन मेरे 6 AS है। आई रिपीटेड AS2, AS3, AS10, AS10, AS11, AS12, AS16, so you have 6 AS. Out of the 6 AS, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 AS तो आते ही है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 AS तो आते ही है, फिक्स्ड है, प्लस क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका एक AS तो आता ही है। सो आई वुड से आउट ऑफ 7 AS 5 AS तो आने ही वाला है यार। तो वेयर इज द लॉस? देयर इज नो लॉस। इधर कैसे है ना, अपन 10-12 चैप्टर्स कर रहे हैं और उसमें से 6 के 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, 3 या 4 चैप्टर्स आते ही नहीं है जनरली, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो हियर तो इट्स लाइक यू आर डूइंग 7 और उसमें से भी एक तो मतलब नहीं बराबर, इट विल बी डन हार्डली इन 15 to 20 minutes. So out of 6 there is a probability of 5 coming, or I would say out of 7 there is a fixed chances, not probability, 7 में से 5 आने ही वाला है, तो 2 ही नहीं आने वाले हैं ना यार, only 2 AS will not come. So उसमें भी AS10 is sure shot, AS10 तो आएगा ही आएगा। AS10, AS11 ये दोनों ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो 99.99% हर एक पेपर में आपको दिखेंगे। So never ever leave these two standards. And my point is कि इसके क्वेश्चंस मैं जो बोल रहा था कि आप मॉड्यूल तो कर ही रहे हो गाइस, बट इसके साथ साथ में CA IPCC की प्रैक्टिस मैन्युअल है। When you go to CA IPCC, ठीक है, वो CA IPCC की प्रैक्टिस मैन्युअल में AS10 अभी भी पुराना वाला है, so don't do AS10 from that, just check, I doubt is there still AS10 is old, तो उसको छोड़ के AS11, AS12, AS16, AS2, AS3 and AS1, so except AS10 बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस अगर आप उधर से करते हो तो नहीं तो भी आपको और 30 to 40 क्वेश्चंस नए उधर मिलेंगे, which will be a fantastic work for you. उतना अगर आप स्टैंडर्ड्स कर लेते हो गाइस, it is more than enough, believe me. प्रैक्टिस मैन्युअल जो IPCC की है उसमें अच्छा खासा कवरेज है 11 का 12 का and all that things. So I would suggest you do practice manual of CA IPCC. That will help you a lot. And as I said, 7 में से 5 आने वाले हैं, तो आप सोच ही जो रहे हो कि कौन से इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ है यार, ऑलमोस्ट 75% जो आप पढ़ रहे हो उसमें से आने वाले 25% ही नहीं आने वाले। सो देयर इज नो हार्म स्टडीइंग दिस। एंड सेकेंडली, पेपर लाइक ऑडिट, you have to give reference of standards, so this will help you out in auditing paper as well. ये आपको ऑडिट में भी काम आएगा। so that is why और frankly speaking, अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस वो लोग अलग से पूछते हैं, तो ऐसा नहीं। स्टडी मटेरियल और जो मैंने बोला IPCC का प्रैक्टिस मैन्युअल में जो भी ये स्टैंडर्ड्स रिलेटेड है, अगर आप ये दोनों मटेरियल अच्छे से करके जाते हो, बिलीव मी, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस यू विल बी सीन वही वाला आएगा।
काफी टाइम फिगर्स भी सेम आता है, ठीक है। सो यार अगर आपके 3 क्वेश्चंस एज इट इज आ रहे हैं, सो व्हाट्स द हार्म इन दिस? दिस इज अ स्कोरिंग पार्ट, दिस इज नॉट अ पार्ट व्हिच यू लूज मार्क्स। वो आपके दिमाग में है कि यार स्टैंडर्ड बोला तो मार्क्स जा रहे हैं, नहीं, बिकॉज आप कवरेज उतना नहीं कर रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट्स के 15 से 20 से 25 सम कर लेते हो, पर आप एक स्टैंडर्ड के 8 या 10 सम भी नहीं कर रहे हो, दैट इज बैड ना। At least do 8 to 10 sums of a particular standard. You will feel better, you will feel positive, you will feel that yes, I am understanding this standard. That will give you a good confidence. So bare minimum 10 sums of every standard, you are through it. Believe me, आराम से confidence level बढ़ जाएगा आपका. So do practice that. That's it, nothing else. Because I have seen photocopies at times. Institute अगर आपका standard अच्छा नहीं है तो exemption नहीं देता है, वो आपको 59 में अटकाता है, ठीक है। सो योर स्टैंडर्ड कमांड हैज टू बी बेटर यार, स्टैंडर्ड का कमांड आपका अच्छा रहना चाहिए। डोंट इग्नोर दैट। आई नो यू आर गुड विथ एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टैंडर्ड व्हेन यू से, डोंट यूज दैट वर्ड्स, बिकॉज सीए फाइनल इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ओनली। सो दे फील कि यार अगर ये पूरा का पूरा छोड़ रहे तो उसको फाइनल में बहुत तकलीफ होगी, रुक जाओ, उसको 58 59 में अटका। सो यार क्या मतलब है अगर आपका पेपर 70 वर्थ का है but still you land nearing around 58 59, that's bad for you. So you have still good amount of time till your exams. Do standards nicely, don't leave it, okay? And I have said you earlier as well, जिधर भी standard का नाम और नंबर नहीं दिया है question में, you mention the name, you mention the number, high chances you just get 1 mark quoting that name and number, but उसके लिए नाम और नंबर perfectly, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट, कुछ जन अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट में वैसा सब लिखते हैं, सो दैट नेम हैज टू बी परफेक्ट, नो मॉडिफिकेशंस, नो बाइफरकेशंस, नो पेट नेम्स। चिराग जेठवा अगर नाम है तो मतलब एग्जांपल चिराग जेठवा ही बुलाना है मेरे को, उसको चिक्कू ऐसा सब मेरे को पेट नेम वगैरह, मतलब मेरे को आगे पीछे नो एडिशन डिलीशंस, द स्टैंडर्ड नेम हैज टू बी दैट, नो चेंजेस, नो मॉडिफिकेशंस। इट्स जस्ट 7, कम ऑन यार। So I don't think so there would be harm in group 1 के standards, that is believe me more scoring. Group 1 के standards easy है, scoring है, ध्यान दो, हो जाएगा आराम से, okay? That's it guys, anything else? I suppose I am done with whatever I had to say. I'm before time today. सर एक और एक क्वेश्चन था। सर वो ब्रांचिंग अकाउंटिंग और डिपार्टमेंट अकाउंट में जो मार्कअप वाले समझाते हैं वो थोड़े हमको टफ पड़ते हैं, मतलब कि तो उसमें कुछ मॉड्यूल में एक समय और एक प्रैक्टिस मैनुअल में एक छोटा वाला क्वेश्चन है, वो छोटा वाला एक क्वेश्चन कर ले। इफ यू आर फीलिंग दैट बड़ा वाला क्वेश्चन टफ है तो एक छोटा वाला मार्कअप वाला क्वेश्चन कर ले। बेसिकली जो डिपार्टमेंट का मार्कअप बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर टू योर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट्स। उसमें अपन मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। सिमिलरली इधर क्या नाम है, मेमोरेंडम स्टॉक, उसमें कुछ मार्क अप मार्क डाउन अकाउंट एक बनता है और स्टॉक अकाउंट बनता है। So instead of branch stock adjustment, here the markup account or mark down account is prepared, and there वो stock के सामने इसका stock वाला ही account है। Just one sum practice that will give you a bit of confidence. सर वो पीएम में है वो स्टोर वो Yes, लेजर yes, वाला, yes. वही लेजर वाला वाला वो एक सम अच्छा वाला है। उसमें लॉजिक मैं तेरे को बताता हूँ, देख नया क्या तेरे को मिलेगा। इन केस यू आर रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम कर रहे हैं तो इफेक्ट दोनों जगह देना है, स्टॉक में भी देना है और मार्कअप में भी देना है। सी बिकॉज मार्कअप इज नथिंग बट योर प्रॉफिट वाला अकाउंट। तो उनका लॉजिक वो है बोलना, अगर तुम प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट ही कम कर दो। इफ यू आर रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस यू रिड्यूस योर प्रॉफिट स्ट्रेट अवे, दैट इज व्हाट दे से। Any reduction in selling price will have an effect in memorandum stock account and memorandum markup account. That is the words that they use. तो दोनों जगह उसका इफेक्ट है, ठीक है चिराग? यस सर। क्लोजिंग बैलेंस में भी सर वैसे ही इफेक्ट देना है ना, क्लोजिंग बैलेंस का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। यस सेम ओके। यस सर।
That's it. Anything else that has to be discussed, let me know. Nothing? No, sir. That's it? Yes. Okay. Sanika, I'm done with the lecture. Yes, yes, yes. Yeah. Yeah. Sorry, sir. I think I had some net issues. No issues, no issues. So I was there in the start of the lecture. I would like to offer a vote of thanks on behalf of the entire Thane Wicasa team. You discussed it very in detail. You gave us tips on how to write the working notes. I think that is the most important tip one teacher could give to a students, because we end up scribbling on papers and then we write a final answer. The working note tip was a wonderful tip, and you discussed the entire paper in detail. I think you told us the trick areas where we could have gone wrong, and as well as you told us focus areas of the exams as well. So thank you so much, sir. I think the students would have definitely benefited from this session, and you also saw doubts, but if anyone has any other doubts, do let us know. We'll connect you with the sir. And yes, that's it for the lecture then. Okay, guys. Thank you. Bye Thank you, bye. All the sir. best for your exams.